Dear friends, I wish you all a happy and blessed new year. मेरे प्रिय दोस्तों, आपको हर्षमय और आशीषमय नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। This year, nobody can or nothing can separate us from the love of God. और इस वर्ष कोई भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। God will be on your side. प्रभु आपके पक्ष में होंगे। We need not fear about any man or anything in this world. और इस संसार में किसी भी चीज या मनुष्य से आपको भय रखने की आवश्यकता नहीं है। As you every day wait upon the feet of Jesus, और प्रतिदिन जब आप यीशु के चरणों में प्रतीक्षा करेंगे, you will hear the words of God, आप प्रभु के मधुर वचन को सुनेंगे and God will fill you with the knowledge of God. प्रभु आपको प्रभु के ज्ञान से भरेंगे। Paul says, संत पौलुस कहते हैं, earnestly seek the gifts of the Holy Spirit. और सच्चाई के साथ आप पवित्र आत्मा की जो सच्चाई है उसको ढूंढिएगा, Especially the gift of prophecy. और विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान को। Dear friends, I wish this gift to come upon me. और प्रिय दोस्तों, मेरी ये इच्छा कि ये जो वरदान है मेरे ऊपर आए, For God to speak to me face to face. जिससे कि प्रभु मेरे आमने सामने बात करे। This year you will have the same anointing along with me. और इस वर्ष मेरे साथ आपको भी ये आशीष और वरदान प्राप्त होगा। May the Lord give you His revelation और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपसे बात करे, and let the words of God keep ringing in your ears this whole year. और इस वर्ष भर प्रभु के वचन हमेशा आपके कानों में गूंजते रहे। May you have a very blessed new year. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीषमय नववर्ष दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious friends, it's a joy to wish you all of God's best, even today. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन भी मैं परमेश्वर की भरपूर आशीष आपके परिवार पर रखता हूँ। The blessing that God has shown me to give you for this month and this year is found in Isaiah 55, verse 10 to 12. और इस वर्ष प्रभु जो आपको आशीष देने वाले हैं वो वचन है यशायाह 55 10 से 12 वचन तक। और इसमें लिखा गया है, It's written like this: For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बोझ और खाने वाले की रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। And when this happens, in verse 13 the Bible says, it shall be to the Lord for a name, or for his honor, for an everlasting sign that shall not be cut off. और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। My friend, this is what is going to happen to you. मेरे दोस्तों, यही आपके साथ होने वाला है। The Lord spoke to me and he said, my son, प्रभु ने मुझसे बात किया और कहा, पुत्र, in 2013 all the promises, prophecies that I have given to my children
will be fulfilled by me. और वर्ष 2013 के लिए मेरे बच्चों को मैंने जो जो प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी दी है वो सब कुछ मैं पूरा करूंगा। It'll be a year of accomplishments of my word. और ये जो वर्ष है मेरे वचन को पूरा करने वाला वर्ष होगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Maybe you have been waiting for a long time for your prayers to bear fruit and bring answers. हो सकता है कि आप लंबे अरसे से आपके प्रार्थनाओं के जवाब के प्रतीक्षा में होंगे। Maybe you have been waiting for a reward for all the donations, offerings you have given to God's ministry. हो सकता है परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपने जो जो दान दिए हैं उसके बदले पुरस्कार की प्रतीक्षा में होंगे। Maybe you have been waiting for the answers for all your righteous life and righteous living before God, all during the past years. और पिछले दिनों आपने प्रभु के सामने जो धर्मी का जीवन जिया है उसके लिए जो जो आशीष है उसकी प्रतीक्षा में आप होंगे। Maybe you have been waiting for all the prophecies to be fulfilled in your life, in your family, in your business, in your job. हो सकता है कि आप आपके परिवार, व्यवसाय और आपके जीवन में आपकी भविष्यवाणी पूरे होने की प्रतीक्षा में होंगे। The time has come now. अब वो समय आ गया है जब ये सब पूरा होगा। Now the Lord says, it will be accomplished. अभी प्रभु कहते हैं कि ये सारा प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होगा। He says, I will accomplish it now in your life. और प्रभु कहते हैं कि आज मैं ये तेरे जीवन में पूरा करूंगा। None of the words that I have spoken to you and for you and through you will ever go void. It will be accomplished now. और आपके लिए या आपके द्वारा जो जो वचन मैंने दिया है वो सब कुछ पूरा होगा और कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, as you read verse 10, it says, as the rain comes upon the earth. और जब हम 10वें वर्ष में पढ़ते हैं कि जो वर्षा है धरती पर गिरती है, As the snow falls upon the ground, और जब हिम है भूमि पर गिरता है, it does not go back to the heavens having not accomplished anything. और वो वापस स्वर्ग नहीं चले जाते हैं बिना कुछ किए। So now, all the rain that has come, all the waters that have come, all the snow that has come will bear fruit in your life. All the blessings, all the word that God has spoken and the blessings that He has promised, which has come like a rain upon you, will now begin to bear fruit in your heart, in your life, in your family, in an abundant manner. अभी तक आपके जीवन में जो जो वर्षा, जो जो हिम आया है और अभी सब कुछ फल देंगे और आपके जीवन को आशीष देकर आपके जीवन को भरपूरी से भर देंगे। Also, you will get more seed, more resources to sow back into God's kingdom this year, to have a greater harvest in God's kingdom and also in your life as you give more to God. साथ में आपको और ज्यादा बीज प्राप्त होंगे जिससे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए और ज्यादा बीज बोकर और ज्यादा आशीष प्राप्त कर सके परमेश्वर के राज्य को जीतने के लिए। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Don't be discouraged. आप निराश मत होइए। The days of receiving answers and miracles and prosperity are beginning today. और आज के दिन से आपके प्रार्थनाओं का जवाब उन्नति प्राप्त करने वाले दिन शुरू हो रहे हैं। All right. Why does this happen? क्यों ऐसा होता है? The Bible says in Psalm 68 and verse 8, और बाइबल में भजन संहिता 68:8 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, the earth shook, the heavens also dropped rain at the presence of God. You, O God, sent a plentiful rain, whereby you confirmed your inheritance when it was weary. और प्रभु के उपस्थिति में पृथ्वी कांप उठी और आपने भरपूर वर्षा दी और ऊपर सीने पर्वत परमेश्वर से इसराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। My friend, मेरे दोस्तों, when God goes before you, here the Bible says, it pours rain. जब प्रभु आपके आगे जाते हैं तब बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो वर्षा करते हैं। And when it rains, whatever is your inheritance, whatever is due for you in your life,
it comes to you to satisfy your weary heart, which has been waiting for an answer from God. और जब यह वर्षा होती है, आप जिस उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, प्रभु वो आशीष आपके जीवन में देकर आपको खुश और समृद्ध करेंगे। My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, the Bible says in Ezekiel 34 and verse 26, और यजेकिएल 34:26 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, I will send showers of blessing upon you. I will make my hill and all the places all around a blessing, and I will cause showers to come down in their season. और मैं आप पर भरपूर आशीष की वर्षा करूंगा और आपके चारों तरफ का जो क्षेत्र है मैं आशीष के रूप में उसको बदल दूंगा, और सही ऋतु में वर्षा की मैं जो आशीष जो वर्षा है वो आपके जीवन में करूंगा। Now is the time, now is the season for the showers to come and the produce to come in your life. और अभी वो समय है जब आपके जीवन में आशीष की वर्षा होगी। All the showers that God has been sending through prophecies, through His Word, and all the prayers you have prayed, which have brought the showers upon you, now is going to bring forth the produce in your life this day forth. और आज के दिन से जो भविष्यवाणी जो आशीष है सब वर्षा आपके जीवन में होगी और सबका आप उत्तर प्राप्त करेंगे। Rejoice in your heart, because from now on you will see that you are going out with joy. आप खुश होइए क्योंकि आज के दिन से आप अपने हृदय में खुशी से उमंग से इधर उधर दौड़ेंगे। Till now you have been laboring and laboring and laboring, but now from now on you're going to go out with joy. और आज के दिन तक आप सिर्फ श्रम करते रहे, परंतु आज के दिन से आप खुशी से दौड़ेंगे। Because you will see God going before you, which makes the rain to come upon you, showers to come upon you. क्योंकि आप ये देखेंगे कि प्रभु आपके आगे आगे चलेंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष की वर्षा होगी। As we saw in Psalm 68 and verse 8 and 9, when the Lord goes before His people, it pours rain. और जैसे हमने भजन संहिता 68:8-9 में देखा, जब प्रभु आपके आगे जाएंगे तब आपके जीवन में आशीष की वर्षा होगी। Jesus said in John 16:19 and 20, और यीशु ने यूहन्ना 16:19-20 में इस तरह से कहा है, in a little while you will see me again, my children, मेरे बच्चों और थोड़े समय के बाद तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखोगे and your sorrow will turn into joy. और आपका जो दुख है आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। You will begin to see Jesus. और आप यीशु को देखना शुरू कर देंगे। You will begin to hear His voice. और आप प्रभु की जो ध्वनि है उसे सुन सकते हैं। You will begin to see the answers coming from Jesus. और आप ये देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का जवाब यीशु से प्राप्त हो रहा है। And you will go out with joy. और आप खुशी से बाहर दौड़ेंगे। And it says, you will be led out with peace. और इसमें ये भी कहा गया है कि आपके जीवन में चारों तरफ शांति ही शांति होगी। Everything is going to be peaceful, peaceful, peaceful in your studies, in your job, in your business, in your ministry. और आपकी पढ़ाई और आपकी जो सेवकाई सब जगह सिर्फ शांति ही शांति शांति होगी चारों तरफ से। Even in the Jesus Calls ministry, I believe this will happen. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु बुलाता है सेवकाई में भी यह होगा। All the prayers that we have prayed and all the prophecies that have been given by God during the past years will begin to fulfill in the world and in the ministry and in the life of the partners this year. और इस वर्ष सहभागियों के लिए संसार के लिए यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा जो भविष्यवाणी दी गई है सब कुछ पूरा होगा और सब प्रभु अपने हाथों से पूरा करेंगे। You will see none of the words of prophecy that we have given out led by the Holy Spirit going waste. This year we will see the answer. और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमने जो कुछ भविष्यवाणी दी है आप देखेंगे कि प्रभु सब कुछ उसको पूरा करेंगे, कोई भी भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगा। My friend, this year I believe the Jerusalem prophetic prayer tower will be established by Jesus Christ. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वर्ष यरूशलेम प्रार्थना भवन यीशु के द्वारा स्थापित किया जाएगा और जल्द स्थापित किया जाएगा। I believe the new buildings for the prayer towers
5 prayer towers, very specially in India, Mumbai, Bangalore, Trivandrum, Madurai, and Hyderabad will be established by God. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु के द्वारा भारत में भी 5 नए स्थान पर मुंबई, हैदराबाद, मदुरई, त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु में नया प्रार्थना भवन स्थापित होगा। I believe this year he will fulfill his word to raise prayer towers in different nations of the world, speaking different languages. मुझे ये विश्वास है कि दूसरे विभिन्न भाषा बोलने वाले देशों में भी प्रभु स्वयं नए नए प्रार्थना भवन खड़ा करेंगे। And this will bring great honor to the Lord Jesus Christ. और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा सम्मान और खुशी और उनके पूरा करने में सहायता करेगा। You young people, you will have the wisdom of God this year. और आप युवा लोग प्रभु की जो आशीष है आपके ऊपर होगी अत्यधिक रूप से। You will have the wisdom to understand the mind of God and bring solutions to world's problems and the problems of humanity, even the problems in nature and in the soil. और प्रभु आपको एक ऐसा ज्ञान देंगे विशेष रूप से इस संसार और आपके जीवन में जो जो समस्याएं हैं उसका हल ढूंढने में प्रभु आपको विशेष रूप से ज्ञान से भरकर उस हल को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। Yes, the prophetical anointing will come upon you and you will enter into research and you will have knowledge to find solutions to human problems. प्रभु आपके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान रखेंगे जिससे कि आप नए नए रिसर्च करेंगे और मनुष्य जाति के लिए जो जो आशीष में आविष्कार है वो आप अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा करेंगे। You will patent and publish those solutions and you will become an entrepreneur to produce those products for the welfare of humanity and also become affluent and prosperous through those businesses. और आप ऐसे व्यवसाय को शुरू करने में प्रभु सहायता करेंगे और प्रभु आपको नया नया जो है प्रोडक्ट है उसको निकालने में सहायता करेंगे जो ये सब जो है उत्पादक है मनुष्य जाति के लिए आशीष लेकर आएगा और इसके द्वारा प्रभु आपको समृद्ध और ऊंचा उठाएंगे। God's word will be fulfilled. The promises shall be fulfilled in your life and through you this year. और आपके द्वारा और प्रभु ने जो जो वचन आपके लिए दिया है वो सब कुछ प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा उसे पूरा करेंगे। He will make you receive these showers of blessing as well as He will make you pour more or plant more seed to establish the kingdom of God in a greater measure this year. और प्रभु आपके ऊपर आशीष की वर्षा करेंगे और आपके द्वारा अनेक जगह नए नए जो प्रार्थना भवन है और उसके राज्य को स्थापित करने के लिए जो बीज है वो आपके द्वारा बोने में सहायता करेंगे। And in all this, Jesus will be magnified, glorified and honored in the nation. और इसके द्वारा प्रभु पूरे राष्ट्र और देश में उसके नाम की महिमा होगी और उसका जो नाम है ऊंचा उठेगा। My friend, you are that vessel of honor whom God wants to fill with showers of blessing. मेरे प्रिय दोस्तों, आप वो पात्र है जो प्रभु आशीष से भरना चाहते हैं, इसलिए प्रभु आपके जीवन में वो आशीष देंगे। You are the one whom He has chosen for His promises to be fulfilled in your life and through you in the lives of the millions of people as you sow into the Jesus Calls ministry, the Karunya University and Sisha ministry. प्रभु ने आपको चुना है जिससे कि आप जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन में आशीष लेकर आए। विशेष रूप से यीशु बुलाता है कारुण्य और सीशा सेवकाई में जो सहभागी है उनके जीवन में प्रभु विशेष रूप से आशीष लेकर आएंगे क्योंकि आप दूसरों के जीवन में बीज बो रहे हैं। May the Lord bless you richly. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अत्यधिक रूप से आशीषित करे। Let me pray that God's hand will come upon you. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु की जो हाथ है आपके ऊपर आए। Father, हे प्रभु, we thank you for all the promises that you have given until now. अभी तक आपने जो जो प्रतिज्ञा दी है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। We pray right now that you will make your word, your promises which you have given to thy child to begin to be fulfilled
this year from this moment in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इस वर्ष आपने अपने बच्चों को जो जो आशीष दी है, वो सारी जो आशीष है, आपकी भविष्यवाणी है, आपके प्रियजनों के जीवन में जल्द पूरा हो। Let this year be a year of accomplishments. और मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस वर्ष इनकी सारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला वर्ष हो। Let your word be accomplished in their lives. और आपका जो वचन है उनके जीवन में सिद्ध हो और वो पूरा हो। And whatever you have promised to do through them, let it be accomplished in the name of Jesus. और इनके द्वारा आप जो कुछ करने वाले हैं यीशु के नाम पे, वो सब कुछ पूरा करने में आप इन्हें सहायता कीजिएगा। Whatever you decide to do through them, let it be done by your power to bring solutions to human problems through them, Lord. और इनके द्वारा आप जिस मनुष्य जाति की जो समस्याओं का हल लेकर आना चाहते हैं, आप उसे लेकर आके लोगों के जीवन में आशीष लेकर आइए। Father, I pray that whatever they have been waiting for and have received the answers and the promises from you in their bodies, let it operate and bring healing to them in Jesus' name. हे प्रभु, और वो जिस आशीष की प्रतीक्षा में है, चंगाई की प्रतीक्षा में है, सब कुछ आप इनके जीवन में लेकर आइए। विशेष रूप से इनके शरीर को आप चंगा कीजिएगा। In their finances, let it bring prosperity and jobs in the name of Jesus to them. और जिनको नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी दीजिएगा, जिन्हें आर्थिक आवश्यकता पूरी करनी है उनकी सारी आर्थिक आवश्यकता आप पूरा कीजिएगा। In their family life, let it bring great joy, oneness and peace and unity to serve you, Lord. और उनके पारिवारिक जीवन में आप एकता और शांति लेकर आइएगा, जिससे कि वो परिवार के रूप में आपकी सेवा को खुशी के साथ कर सके। In their businesses, let them see great wisdom, new ideas and finances and returns 100 times from this moment in Jesus' name. और इस क्षण से यीशु के नाम से उनके व्यवसाय में आप आशीष लेकर आइए, और जिसमें भी वो अपना रुपए और पैसा लगाए उसमें उनको 100% लाभ प्राप्त हो और उनको नए नए आविष्कार करने में सहायता कीजिएगा। In their souls, let your Holy Spirit bring forth prophetical utterances and prosperity, bringing miracles to thousands of people through them. और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के उनको भविष्यवाणी की जो आशीष है वो दीजिएगा, और इनके द्वारा जो है हजारों लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष आए। Father, give them the grace to sow, to build your prayer towers, to heal the poor, the widows, the orphans, and bring prosperity and peace in their हे lives. प्रभु, आप इन्हें जो प्रार्थना भवन का जो निर्माण है उसे सहायता करने और अनाथ और बच्चों की सहायता करने वाला ऐसा एक हृदय दे, जिससे कि वो सेवकाई के लिए अपने योगदान और प्रार्थना के द्वारा सहायता कर सके और समृद्ध हो। Bless their offerings. और वो जो दान देने वाले उसे आप आशीषित कीजिएगा। Let it multiply and bring blessings to millions more through Jesus calls Karunya Sisha Ministry. और वो जो दान देने वाले हैं वो दान कई गुना और बढ़े, और यीशु बुलाता है कारुण्या शीशा सेवकाई के द्वारा हजारों लोग, लाखों लोग आशीष प्राप्त करें। Father, हे पिता, give them peace. उन्हें शांति दीजिएगा चारों तरफ से, Let them have peace all around their lives. और उनके जीवन में चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति हो। Remove the evil spirits and the wicked people, Lord. और उनके तरफ से जो दुष्ट लोग हैं और बुरे लोग हैं उनसे उन्हें छुटकारा दीजिए। Remove the addictions and their evil habits and their guilt in the name of Jesus. और यीशु के नाम से उनके जीवन में जो भी लत है, जो भी बुरी आदत है, और हर बुराई से इनको छुटकारा दीजिएगा। Father, give them great joy seeing accomplishments after accomplishments. और वो सिर्फ अपने प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त करें और उनके जीवन में किसी तरह का दुख ना हो। Build their home, और उनके परिवार का आप निर्माण कीजिएगा, build their business, और उनके व्यवसाय का आप निर्माण कीजिएगा, build their families, और उनके परिवार का भी आप निर्माण कीजिएगा, build their spirits. और उनकी आत्माओं का निर्माण कीजिएगा, You be glorified through them, Lord. और उनके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। In Jesus' name, we thank you for answering this prayer. और इस प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए मैं यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ, We give you all the glory. और सारी महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। My precious, precious friend, मेरे प्रिय प्रिय दोस्तों, this year is going to be a year of God's accomplishments of His Word
in your life. और इस वर्ष प्रभु आपने सारे वचन को आपके जीवन में पूरा करने वाला वर्ष होगा। As you receive these blessings, you will also be able to plant your seed to build God's kingdom. और जब आप ये आशीष प्राप्त करेंगे, आप उस आशीष प्राप्त करने के बाद प्रभु के राज्य के निर्माण में सहायता कीजिएगा। We are taking up the construction of the new buildings in Mumbai Prayer Tower, in Hyderabad Prayer Tower, in Bangalore Prayer Tower, in Madurai Prayer Tower, and in Trivandrum Prayer Tower. और हम मदुरई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में नए नए प्रार्थना भवन निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। As you build God's जब house, आप प्रभु के भवन का निर्माण करेंगे, God will be so delighted प्रभु आपसे खुश होंगे that you have given him a place, a building to come and receive people and bless them. He will build your house in return. कि आपने उनके लिए एक इमारत खड़ी की है जिससे कि लोग आकर उनके आशीष को प्राप्त कर सके। इसे देखकर प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे। आप अपना बहुमूल्य दान यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन 72 राजा जी सलाई, चेन्नई 600001। आप अपनी दान राशियों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा हमारी वेबसाइट पर अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। You could give whatever you can, whatever God puts into your heart, and whatever your heart delights in doing for God. God sees your heart, He'll bless you. प्रभु जैसे आपके हृदय में अगुवाई करते हैं उसके अनुसार आप प्रभु की सेवकाई को अपने योगदान के द्वारा सहायता कर सकते हैं। प्रभु आपके हृदय को देखकर आपको आशीष देंगे। Father, give your children grace to give according to your will and prosper them greatly, Lord. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को योगदान देने में अगुवाई कीजिएगा और इस योगदान के द्वारा उनका परिवार और घर आशीषित हो। God bless you, my friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे May this month and this year be a great blessing to you. और ये महीना और ये वर्ष आपके लिए अत्यधिक आशीषों का वर्ष हो।